Hello, Assalamu alaikum dear students. Welcome back to a new session. That's our Friday, and we will going to conduct two different sessions here. The first session will going to be approximately 2 hours from 8:30 to um, 10 o'clock, and or maybe 10:30, and then we will take a 30 minutes to 40 minutes break, and then we will start again at 11 o'clock. So from 11 to 1 there will be another session, so it's like 4 hour session. In between we have a break. So before starting my lecture, I just wanted to go through with the previous uh, lecture. We were discussing about what is cost of capital and what is cost of debt. And then after that, what we have done is after calculating the cost of equity, then cost of debt, and then we have used these both cost from debt, cost of equity, with the weightage of that. So these are the weightage for cost of debt and cost of equity. So when we finance from equity side, we definitely raise some sort of finance from here, some from here. And there is another thing which is called preferred shares. So I'm not discussing this in detail, just not to complicate anything. So if you add up that thing too, the formula is going to be slightly different. What is going to be added? The preference shares value and cost is going to be added here also. So for example, if your instructor has given you equity side financing, so you will take the equity side weight and its cost plus debt side weight and its cost. And if another thing is also there, such as preference shares, so the weightage of preference shares and its cost is going to be added. Usually the preference shares cost usually given. For example, 11% you are giving on the preference shares. So what is the weight in total you are getting it here? These weight may be available in the form of percentages. So for example, it's like 20% you are getting from equity side, 50% you are getting from debt side, and 30% you are getting from the preference shares. So these percentages can be changed, and we have already discussed in the previous sessions that how we will going to uh, calculate the weightage. It is very simple. So for example, you are taking $100,000, out of which how much is from debt, how much is from how much is from equity, how much is from debt, and how much you are taking from preference shares. So the amount which you are raising 20%, so it's like 20,000. 20,000 you are taking from equity side, 30, 50,000 you are taking from debt side, and 30,000 you are taking from preference shares. So you will issue new shares and raise the fund, finance your project from debt through either bonds or taking loans. Usually we issue bonds and then corporate bonds type, or maybe junk bonds or zero coupon bonds, depending on
what the company policy is. Um, so you will pay interest in it. There's a tax shield related with this. Don't forget that. So let's wait for all students, and then we will revise this again. Let's see how much time they were going to take to come back. So for the time being, just wait for them, and then we will start our session from here again. जी अभी स्टूडेंट्स थोड़े से आ जाएं तो हम फिर स्टार्ट करते हैं सेशन. आई थिंक दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम. 5 minutes we are going to take a break from here. अस्सलाम वालेकुम साकिब, वेलकम बैक. हम अभी सेशन स्टार्ट करेंगे साकिब. जस्ट 5 से 10 मिनट हम वेट करते हैं, स्टूडेंट्स का सब ज्वाइन कर लें, क्योंकि फिर मैं आज थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चंस की. एक दो क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ स्पेशल टेक्निक्स हैं जो बहुत सिंपल हैं, वो हम यूज़ करेंगे जो हमने कल का लेक्चर पढ़ा था. सो अटेंडेंस में इस वक्त हमारे पास जो है मोहम्मद उमैर अजीज़ साहब मौजूद हैं. सबीका अब्दुल कादिर. साकिब हुसैन. रूज फातिमा. Okay, Veena also joined. जी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम 5 मिनट्स तकरीबन और वेट करेंगे. बाकी स्टूडेंट्स आ जाएं, फिर हम क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी. जो फिर लेट आएगा तो फिर हम उसको इस टॉपिक से रिलेटेड बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज मुझे मर्जर्स एंड एक्विजिशन का टॉपिक स्टार्ट करना है. थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ी बहुत डिस्कशंस होंगी जो भी है, और फिर हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा. सिर्फ मुझे बता दीजिएगा चैट बॉक्स में आवाज़ क्लियर है.
जी, थैंक यू सबीका, थैंक यू मैर, थैंक यू वीना, थैंक यू रूज, मोमना। Okay, another student is here. अतीका, आपकी भी अटेंडेंस लग गई है। मुझे लगता है आज फ्राइडे है तो आज बच्चे जो है वो कम ही आएंगे, क्योंकि सुबह हमने जल्दी स्टार्ट किए फ्राइडे प्रेयर्स की वजह से। चांसेस ये होंगे कि हम लोग जो है वो 12:30 या 12:40 तक सेशन ख़त्म कर देंगे ताकि जुमे की नमाज की तैयारी कर सकें। मोस्ट प्रॉबेबली हमारा सेशन ख़त्म हो जाएगा। और वीना का क्वेश्चन है कि सर ये लास्ट क्लास होगी अगर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो। यस, टॉपिक्स जो है वो वैसे भी अगर कोई 19-20 सिलेबस में कोई चीज़ रह गई है तो अब हम उसको कवर अप नहीं करवा सकते। एक तो फिज़िकल और ऑनलाइन में 2-3 दफ़ा शिफ्टिंग हुई, लेकिन आज हमारे काफ़ी हद तक टॉपिक कवर हो जाएंगे। और एक मेन टॉपिक था विच इज़ मर्जर्स एंड एक्विजिशन, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मैंने कोशिश की है, क्योंकि कॉर्पोरेट फाइनेंस में यूजुअली गवर्नमेंट को डिस्कस कम किया जाता है, सिर्फ कंपनीज को डिस्कस किया जाता है, तो मैं दोनों साइडों पे कोशिश करूंगा। मैंने जो स्लाइड बनाई है कि जो एक ओनर होता है वो कैसे बिहेव करता है, यानी कि जो फाइनेंस मैनेजर है, जो सीओज हैं, सीएफओज हैं, तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशन में और उनके क्या मकसद होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो गवर्नमेंट होती है जो कंप्लाइंसेस क्रिएट करती है इन लोगों के लिए, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, तो वो कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं नहीं करते, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं क्या, गवर्नमेंट क्यों कहती है कि भाई आपको ज़रूरत है कंपटीशन करने की, तो वो मोनोपोली को डिस्करेज करते हैं। कि सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अ, और ये सब प्रैक्टिकल होगा इंशाल्लाह ताला। तो थोड़ा सा वेट करते हैं दो बाकी स्टूडेंट्स का, और 2-4 मिनट और फिर बस स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आज मैं थोड़ा सा आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा जिससे अ, आपकी थोड़ी सी माइंड जो हमने कल का लेक्चर लिया है वो क्लियर हो जाए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि मैंने एक क्वेश्चन जो है वो व्हाट्सएप पे भेजा था। वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, वो सिंपल क्वेश्चन नहीं है। सिंपल से मुराद ये है कि जैसे कि आपसे कह दिया जाए कि रेट ऑफ एक्यूटी मालूम कर लें, या बल्कि मैं इसको लिख के बताऊं आपको तो ज़रा जल्दी समझ में आएगा। देखिए, बाज़ दफ़ा हमारे पास जब हम वैक कैलकुलेट करते हैं तो याद रखिएगा इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, फॉर्मूले की वजह से लोग परेशान होते हैं। सबसे पहले तो आपने कॉस्ट मालूम करनी होती है, सही है, किसी भी चीज़ की, जो चीज़ जहाँ से आप फाइनेंस कर रहे हैं। अच्छा, अब फाइनेंस करने के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सही है, बहुत सारे ऑप्शंस का मतलब ये है कि डेट, हम बार बार पढ़ रहे थे कि डेट से जो है वो फाइनेंस हो सकती है, थ्रू डेट। हमने एक और चीज़ पढ़ी, थ्रू इक्विटी फाइनेंसिंग हो सकती है। लेकिन इक्विटी में भी हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, ऑर्डिनरी शेयर्स पढ़े थे और प्रेफरेंस शेयर्स पढ़े थे। तो अगर आप प्रेफरेंस शेयर से
फाइनेंसिंग कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हमने यहाँ पे नहीं लिया था फॉर्मूले में। तो अब ज़हन में रखें, जैसे ही कोई क्वेश्चन आएगा ना पेपर के अंदर, तो आपने सबसे पहले वैक वो कॉस्ट है जो आप फाइनेंस करने के लिए ऑन एन एवरेज मालूम कर रहे हैं, यानी कि ये एक एवरेज होगा सारी कॉस्ट का। सारी का मतलब है कि कितना आपने जो है वो इक्विटी से फाइनेंस किया है, कितना आपने डेट से फाइनेंस किया है, कितना आपने जो है वो इक्विटी के अंदर ऑर्डिनरी शेयर से किया है, कितना प्रेफरेंस शेयर से किया, तो सबकी कोई ना कोई कॉस्ट होगी। तो सबसे पहले क्या करें, आप वहाँ पे फाइंड आउट करें कि रेट ऑफ इक्विटी क्या है, यानी कि रेट ऑफ इक्विटी का मतलब है कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है। फिर आपने उसका वेट मालूम करना है कि भाई कितना वेटेज आप जो है फाइनेंसिंग का शामिल करेंगे। तो लेट सपोज हम कहते हैं कि हमने जो है वो 40% फाइनेंसिंग जो है ना वो कहाँ से की है, इक्विटी साइड से की है। तो ये एक सेगमेंट पूरा हो गया ऑर्डिनरी शेयर्स वाला। सही है, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ना ऑर्डिनरी शेयर्स, नंबर वन। अब नंबर टू, प्रेफरेंस शेयर्स भी तो हो सकते हैं जहाँ से हम रेज करें। तो अगर पेपर में ऐसी चीज़ आ जाए तो आपने सिंपली रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स गिवन होगा। सही है, यूजुअली ये फिक्स्ड होता है ना, इसमें कोई फ़ायदा होता है। ये 11%, 10%, 7% आपको पहले से गिवन होगा। 9% किसका, प्रेफरेंस शेयर्स का रेट। इसका वेट भी गिवन होता है यूजुअली, तो वो वेट मालूम कर लेंगे, वेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब मैंने क्या किया, कल हमने सिर्फ दो चीज़ें पढ़ी थी, आज मैंने एक चीज़ प्रेफरेंस शेयर्स वाली आपको और इंक्रीज कर दी। अच्छा, एक लास्ट चीज़ जिसमें हमें टैक्स शील्ड मिलता है, दैट इज़ डेट। तो डेट के अंदर हम लोग जो है यूजुअली बॉन्ड्स इशू करती है कंपनी अपने, जैसे कि कॉरपोरेट बॉन्ड्स होते हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड्स इशू करेगी। तो हम इसमें किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले हम मालूम करेंगे कि भाई कितना रेट हम जो है वो इस बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं। और वो जो इंटरेस्ट होता है वो यील्ड टू मेच्योरिटी था, अगर याद हो, हमने कल इसको डिटेल में डिस्कस किया है, YTM। अच्छा, ये जो हम रेट दे रहे होते हैं ये हो गई इसकी कॉस्ट, तो हमने RD लिख दिया यहाँ पे, और इसका अपना वेट होगा डेफिनेटली, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस जो भी टैक्स रेट होगा, यूजुअली कॉर्पोरेट टैक्स होता है। अच्छा, ये भी डिस्कस किया था कि टैक्स रेट यूजुअली बुक्स में जो है वो आपको ज़्यादातर 20%, 25% और 40% लिखा हुआ आएगा, इसी रेंज में। लेकिन ये कोई फिक्स रूल नहीं है, 15% भी आ सकता है, 10% भी आ सकता है, डिपेंडिंग होगा ना कि उस कंट्री में ये कॉरपोरेशन साइड क्या कितना टैक्स दे रही है। तो हमने अब वेटेज के अंदर तीन चीज़ें ले ली। वन, ऑर्डिनरी शेयर्स, उसकी कॉस्ट, उसका वेट। प्रेफरेंस शेयर्स, नंबर टू, उसकी कॉस्ट, उसका वेट। डेट, नंबर थ्री, उसकी कॉस्ट और उसका वेट। क्योंकि डेट जब भी लेते हैं तो उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, तो हमारे पास ये टैक्स शील्ड भी हमें मिल जाती है, और उससे हमें थोड़ा सा फ़ायदा होता है। लेकिन इसकी वजह से नुकसानात भी होते हैं, फाइनेंशियल रिस्क और इस तरह के रिस्क जो है ना वो हमारे इंक्रीज कर जाते हैं। तो ये तो था एक सिंपल सा रिवीजन जो हमने पिछली क्लास में किया था। मेरे ख्याल से अब आपको फॉर्मूला ये रट गया होगा। ये कोई इतना मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, लेकिन लोग बना देते हैं इसको मुश्किल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो हम वैक निकाल रहे हैं ये भी कॉस्ट है, याद रखिएगा। ये जो कॉस्ट होती है ये उस कॉस्ट का रेट है, लेकिन कौन सा रेट है, एवरेज रेट है। और एवरेज कैसे निकला है, विद द हेल्प ऑफ वेट्स, कि कितना कितना वेट आपने। तो हम जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा इक्विटी साइड से हमने 40% लिया है, फर्ज करें प्रेफरेंस शेयर से हमने 20% रेज कर लिया, तो ये टोटल 60% बना।
और 40% हम फिर जो है ना वो डेट से लेंगे, तो टोटल ये 100% हो गया। तो जो फाइनेंसिंग है हमारी इस तरीके से होगी। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको पॉइंट। जी, किसी के जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ पे पूछ ले, ताकि फिर हम जो है कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और एक दो बच्चे जो है वो ऐड हुए हैं अभी, तो उनकी अटेंडेंस मार्क कर दूं मैं। जी, आप लोग चाहें तो माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन जहन में आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसमें मैं आपको लेके जाऊंगा शेयर्स की वैल्यूएशन तक, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा पूरी। तो मेरे ख्याल से इकरा की हमने अटेंडेंस नहीं लगाई है। जी, इकरा आप हो गई। जलाल बलोच। वहीदुर रहमान। वहीदुर रहमान, आपकी कल की अटेंडेंस नहीं आ रही है, क्या वजह है? चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे। सारा ने भी ज्वाइन कर लिया। आयशा आरिफ। ओके वहीद। जी, किसी बच्चे को शक तो नहीं है कि उसकी अटेंडेंस मार्क ना हुई हो? अच्छा, मेरे पास एक स्टूडेंट आ रही है आयशा कंवल, और यहाँ पे आ रहा है आयशा आरिफ। ये दोनों सेम है? चैट बॉक्स में बता दीजिए मुझे। ओके आयशा कंवल, थैंक यू। जी, और किसी बच्चे की अटेंडेंस तो नहीं रह गई है? क्योंकि जो जो स्टूडेंट्स आते जा रहे थे मैं उनकी अटेंडेंस मार्क करता जा रहा था। अतीका रसूल। अतीका, आई थिंक मैंने आपकी अटेंडेंस लगा दी है। जी अतीका, आपकी अटेंडेंस लग गई है। आप काफ़ी पहले से आई हुई हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हम बस फिर बस 2 मिनट और वेट कर रहे हैं, फिर बस अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेशन। कोई क्वेश्चन है जहन में तो फिर पूछ लीजिए, वरना फिर मैं स्टार्ट करूं। मोमिना। मोमिना, मैं आपको ज़रा से चेक कर लूं। सिर्फ मेरे पास एक जो आ रहा है वो मोमिना लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन मोमिना, आप कल नहीं आई थी? मोमिना अमरानुल्लाह। जी मोमिना अमरानुल्लाह, आप क्या कल नहीं आई थी? चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। सर मैंने कल भी अटेंड की थी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ दो, मतलब आपने कोई एक सेशन मिस किया था शायद, या मैंने आपका नाम मिस कर दिया है। क्योंकि कल 2 सेशंस हुए हमारे। आज भी इसी तरीके से 2 सेशंस हैं।
अच्छा, आप सेकंड सेशन में नेटवर्क की वजह से नहीं आई थी। सारा, मैं आपकी अटेंडेंस चेक कर लेता हूँ। जी सारा, आपकी अटेंडेंस लगी हुई है। जो बच्चे पहले आए और उनका मैंने नाम भी लिया था, तो वो तो खैर उनकी तो अटेंडेंस लग गई है। अच्छा जी, तो ये तो हो गई अटेंडेंस कंप्लीट, अभी तक जितने बच्चे आए। बाकी फिर हम बाद में लेंगे अटेंडेंस, या नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास वहीदुर रहमान का कि सर वैक थोड़ा बता दें। अगर वैक अगेन थोड़ा बता दें तो अच्छा हो जाएगा। वहीदुर रहमान, अभी हम इतनी देर से वैक ही पढ़ा रहे थे, और एक दफ़ा छोटी सी बात मैं दोबारा से ऐड कर देता हूँ, ये जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की थी। ये चीज़ याद रखिएगा कि जैसे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उसके बाद फिर आपके पास जो है ना, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग की वजह से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपको बड़ी हैरत होगी, ये छोटी सी चीज़ देखने में वैक बहुत सिंपल लगती है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है बैंकिंग में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, ट्रेजरीज में, फाइनेंस में, मतलब कहीं पे भी आप काम कर रहे होंगे तो आपको पैसे चाहिए होंगे, और अब ये चीज़ इस्तेमाल हर जगह पर होती है, उसका यूजेज बहुत है। और वहीदुर रहमान का दूसरी बात, सर मैं अभी आया, जैसे जॉब से आया डायरेक्ट ओपन किया नेट तो आप पढ़ा चुके थे। जी, तो अच्छी बात है ना। वही एक चीज़ याद रखिएगा कि देखें, आप अगर लेट आए कोई मसला नहीं है, वैसे तो खैर मैं अभी छोटे से बात रिपीट कर दूंगा क्योंकि 2 मिनट लगेंगे इसके अंदर। लेकिन अभी एक बच्चे ने और ज्वाइन किया हमें, खुर्रम, खुर्रम सईद। ए रहमान साहब भी आ गए। दो की मैं अटेंडेंस लगा दूं फिर स्टार्ट करता हूँ, एक सेकंड। ये अटेंडेंस वाला इशू बहुत अजीब है वैसे। अच्छा जी, अब मैं अटेंडेंस की तरफ नहीं जाऊंगा, इंशाल्लाह वो बाद में करते हैं। खुर्रम सईद, आपकी अटेंडेंस और ए रहमान, आप दोनों की अटेंडेंस हो गई है। और खुर्रम सईद, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं और फिर बात कर सकते हैं अगर वो इशू है। खैर, अटेंडेंस लगा दी है मैंने। अब मैं थोड़ा सा एक सिर्फ जल्दी जल्दी करके एक रिवीजन सा दे रहा हूँ, ये 2 मिनट में फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो मैं आज क्वेश्चन करवाऊंगा ना, वो लिखा हुआ नहीं होगा, उसमें कोशिश मैं करूंगा आपको कि कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने की जिसकी वजह से आपका माइंड और ओपन हो जाए, क्योंकि पेपर के अंदर मैं सिर्फ आपको ये नहीं दूंगा कि जो आपने फाइनेंस हासिल किया है, यानी कि जो आप अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहे हैं, उसकी प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग, दो चीज़ें हमने पढ़ी थी कि या तो डेट फाइनेंसिंग है हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल, और या फिर इक्विटी फाइनेंसिंग है। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन अगर याद हो तो हमने इक्विटी फाइनेंसिंग में भी फर्दर दो चीज़ें पढ़ी थी। एक था हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर्स वाला, और दूसरा हमारे पास जो था वो प्रेफरेंस शेयर्स थे, जिसमें हमने कम्युलेटिव नॉन कम्युलेटिव पढ़ी थी। तो ये तीनों चीज़ें जो है, 1, 2 और 3, ये तीनों चीज़ें जो है अपनी एक कॉस्ट रखती होंगी। यानी कि जब आप कोई चीज़ लेते हैं फाइनेंस के तौर पे, तो डेफिनेटली आप उसको कोई ना कोई इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट, कुछ ना कुछ तो देंगे, वरना फालतू में कोई भी आपको पैसे नहीं देगा। तो इनमें हम तीनों चीज़ों में क्या, कैसे फॉर्मूले में कैसे उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं तीनों चीज़ों को, तो वो तरीक़ेकार ये होता है कि जब हम वैक का फॉर्मूला बनाएंगे, तो सबसे पहली चीज़ आपके जहन में आनी चाहिए कि जो भी फाइनेंसिंग आप अवेल कर रहे हैं,
की कॉस्ट क्या है, यानी कि उसका रेट क्या है। तो रेट ऑफ एक्विटी, RE, इसको मैंने बता भी दिया था, ये KS से भी डिनोट हो रहा होता है, कहीं KE से डिनोट हो रहा होता है, कहीं RE से डिनोट हो रहा होता है। तो ये सिंबल चेंज हो जाए कभी कहीं पे लिखा हुआ तो आप घबरा मत जाइएगा कि सर पता नहीं वहां पे तो हमने बुक में तो सिर्फ फोकस करें वो कह क्या रहे हैं। तो जो इक्विटी फाइनेंसिंग होती है उसका कोई ना कोई वेट आपने डाला होगा। वेट का मतलब ये होता है कितना पैसा वहां से ले, परसेंटेज टर्म्स में, कि 10% पैसा उठाया आपने इक्विटी से, 20%, 50%, 60%, कितना परसेंट आप ले रहे हैं, और उसकी जब वो पैसे लिए तो उस पर कॉस्ट कितनी है। याद रखिएगा जब भी हम रेट ऑफ इक्विटी मालूम करते हैं तो उसके लिए हमने फॉर्मूला जो इस्तेमाल करना है एग्जाम्स में वो है कैपम का फॉर्मूला। सही है। और कैपम के फॉर्मूले के लिए आपको कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे पहले रिस्क फ्री रेट आएगा, RF। उसमें हम ऐड करते हैं एक बहुत बड़ा सेगमेंट। ये जो सेगमेंट होता है इसमें दो चीजें होती हैं, एक बीटा होता है। बीटा को हमने कहा था कि ये सिस्टमैटिक रिस्क है। ये क्या चीज है? सिस्टमैटिक रिस्क है। अच्छा, जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है वो डाइवर्सिफाई नहीं हो सकता, वो सिस्टम में मौजूद होता है, इसीलिए उसको कहा जाता है कि सिस्टमैटिक रिस्क है। यानी कि ऐसा रिस्क जो ऑलरेडी अवेलेबल है सिस्टम के अंदर। ये मैंने कल वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ाया है, इसको वहां से देख लीजिएगा। और ये कॉन्सेप्ट आपका आगे जब आप थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे ना, या तो एडवांस कॉर्पोरेट फाइनेंस या स्ट्रैटेजिक कॉर्पोरेट फाइनेंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ट्रेजरी फंड मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स के डिफरेंट नाम हैं। इन सब में ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी। तो यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लीजिएगा इसके बारे में। चैट बॉक्स में कह रही है उरूज के सर रेट ऑफ डेट कैसे फाइंड करेंगे। रेट ऑफ डेट भी आपको मैंने कल पढ़ा दिया था। रेट ऑफ डेट जो होता है वो उन पे वो तो क्लियरली लिखा होता है ना, जितना कूपन आप या जितना इंटरेस्ट आप दे रहे होते। लेकिन रेट ऑफ डेट के लिए मैं यहाँ पे लिख भी दूँ, YTM का सहारा लेते हैं हम, यील्ड टू मेच्योरिटी निकालते हैं। अब मसला ये है कि अगर हम यील्ड टू मेच्योरिटी निकाल रहे हैं, मैंने सबको करने के बजाय मैसेज कर दिया एक बच्चे को, वापस कर दिया। यील्ड टू मेच्योरिटी, और कल मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था यील्ड टू मेच्योरिटी कैसे निकालते हैं, लेकिन वो आपको पेपर में मैं नहीं दूंगा। वो आपके जो पहले आपने कोई बेसिक कोर्स पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स, सॉरी इसका फाइनेंस का, तो वहाँ आपने यील्ड टू मेच्योरिटी निकालना सीखी होगी। लेकिन मैंने कल के लेक्चर में देखिएगा रिकॉर्डिंग्स में मैंने बकायदा पिक्चर बना के दिखाया, क्योंकि एक बच्ची ने पूछा था कि सर ये कैसे निकालते हैं। तो उसमें हम जो है जो भी कॉस्ट होती है, यानी कि जो प्राइस हम आज पे कर रहे होते हैं, तो फ्यूचर में जो हम पेमेंट्स कर रहे होंगे किसी को, उसको आज तक कितना रिटर्न दे रहे हैं, तो इनकी वैल्यूज किस तरह निकली हुई थी कल मैंने डिस्कस किया था। तो प्लीज़ उरूज वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है, इसलिए इसकी डिटेल में अब दोबारा नहीं जाएंगे। चलें जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा कि सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है वो बीटा होता है। अच्छा, ये सिस्टम में मौजूद है जो कि डाइवर्सिफाई नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि कंपनी चाहे तो इसको कंट्रोल नहीं कर सकती, जिसकी मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको दी थी आजकल, जैसे कोविड-19 की वजह से अगर एयरलाइन इंडस्ट्री तबाह हो रही है, तो क्या एयरलाइन इंडस्ट्री का इसमें कोई कसूर है? क्या उनकी मैनेजमेंट खराब थी? क्या उनकी स्ट्रैटेजी खराब थी? क्या उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी? लेकिन क्योंकि कोई ऐसे अनफोर्सीन इवेंट्स हो गए जिसमें वो कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह एक जो कंपनी, मिसाल के तौर पर मैं ऐसी एग्जांपल देता हूँ कि बेनज़ीर यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे ऑपरेट कर रही है, सही। अगर बेनज़ीर यूनिवर्सिटी चाहे कि HEC के रूल्स चेंज कर दे, तो क्या वो कर सकती है? आंसर इज नो। HEC एक अलग डिपार्टमेंट है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो उसके अपने मेंबर्स होंगे, वो फिर डिसाइड करेंगे। यस, बेनज़ीर यूनिवर्सिटी का एक पॉइंट जो है वो तो लिया जा सकता है कि जैसे 100 यूनिवर्सिटीज हैं उसमें से 100 यूनिवर्सिटीज ने अपनी सजेशंस दी, तो एज ए सजेशन तो लिया जा सकता है, लेकिन उसकी वजह से HEC अपने रूल्स चेंज नहीं करेगी किसी एक
चीज की वजह से। तो अब फर्ज करो रूल आ जाए कि जो है ना वो कोई भी जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, या बल्कि सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो बीएससी करवा सकती है, बीए करवा सकती हैं, लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं करवा सकती। ये सिर्फ मैं ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ जो कि बहुत स्टूपिड एग्जांपल है समझाने के लिए। अब पता चला बेनजीर यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थी, अब वो बीए बीएससी करवा रही थी, अब वो बीए बीएससी नहीं करवा सकती क्योंकि एचईसी का रूल आ गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बेनजीर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं हो रही थी या टीचर्स नहीं थे, लेकिन रूल्स की वजह से अब उनको फॉलो करना पड़ रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अनफोर्सीन इवेंट्स होते हैं, जैसे अचानक एकदम महंगाई होना शुरू हो गई। अब मैंने फर्ज करें एक बर्गर की शॉप खोली हुई थी, वहां पे मैं सूप बेचता था और मैं अंडे वाला बर्गर बेचता था जिसमें टमाटर और ये सारी चीजें डलती हैं। अब गोश्त अचानक महंगा हो जाए, सही है, अचानक टमाटर और ये जो कुकम्बर और खीरा वगैरह ये सब हम उसके अंदर डालते हैं, प्याज व्याज ये सब महंगी हो गई। अब बर्गर बेच रहा था मैं 60 रुपीज का, तो क्या मैं 60 रुपीज का बर्गर बेच सकता हूँ? सर्दियों के से अंडा ही महंगा हो गया, 15 से 20 रुपए का अंडा हो गया, सही है। अब एक अंडा अगर मुझे उसमें इस्तेमाल करना है तो 20 रुपए की तो कॉस्ट वही आ गई। फिर ऑयल है, गैस है, वहां पे सारी चीजें हैं। अब पता चला टमाटर जो है वो 200 रुपए किलो हो गए। अब उसमें जब मैं टमाटर डालूंगा तो वो कुछ ना कुछ तो कॉस्ट आएगी उसकी, 5-10 रुपए। तो ये सारी कॉस्ट मेरी इतनी बढ़ गई, तो अब मैं वो 60 रुपीज का नहीं बेच सकता, अब मुझे 70, 80, 90 रुपीज उसकी प्राइस करनी पड़ेगी सिर्फ बेचने के लिए। अब मसला ये है, कंपनी ने अपने आप को एडजस्ट तो किया, लेकिन महंगाई की वजह से उसके बिजनेस पर असर पड़ रहा होगा। ये जितने भी रिस्क इस तरह के होते हैं ना, ये सब कहलाते हैं सिस्टमैटिक रिस्क, सही है। और इसका मैंने नाम लिखा भी था पीछे, अगर याद हो आपको, यहाँ पे मैं दिखा दूं कि सिस्टमैटिक रिस्क जो है वो इंटरेस्ट रेट की वजह से आता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अनाउंस कर दे, अभी इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी रखी हुई है कि 7% जो है ना वो इंटरेस्ट रेट है। अचानक ये बढ़ा के जो है वो 8-9% पे ले जाए, फिर 10%, फिर 12%। अगर स्टेट बैंक अपना ये रेट बढ़ा रहा है तो इसका मतलब है इकोनॉमी में रिस्क फ्री रेट इंक्रीज हुए जा रहा है मुसलसल। ये जो सेंट्रल बैंक अनाउंस करता है रेट अपनी सिक्योरिटीज के ऊपर, जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गए, इनको हम लोग फाइनेंस में रिस्क फ्री रेट के तौर पे ले रहे होते हैं। और ये इकोनॉमी में एक बेंचमार्क होता है, लोएस्ट बेंचमार्क विच इज अवेलेबल, यानी कि सबसे कम जो रेट होता है ना वो इनका होता है, क्योंकि रिस्क फ्री है, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं होता। अगर ये रिस्क एकदम बढ़ना शुरू हो जाए तो क्या इसमें कंपनी का कोई फॉल्ट है? नहीं। इसी तरीके से मार्केट में जैसे अब कोविड-19 आ गया, डिमांड किसी चीज़ों की ख़त्म हो गई, सही है। जैसे सीजनल डिमांड होती है, चीज़ ख़त्म हो जाती है, उसके बाद अब आपका कोई कसूर नहीं है, तो इसीलिए आपको एडजस्ट करना पड़ता है। परचेजिंग पावर डिमांड साइड को कहते हैं। एक्सचेंज रेट, जैसे मैंने कल एग्जांपल भी दी थी कि अगर इंक्रीज हो जाए और एकदम डिक्रीज हो जाए। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, पता ही नहीं हो कल के कल क्या होगा, इमरान खान रहेगा नहीं रहेगा, कल को फौज आएगी, कल नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, बेनजीर आ जाएगी, कुछ पता ही नहीं है, मतलब ना। अगर एकदम ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी, तो उससे भी बिजनेसेस जो है उसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व होता है। और वो जो रिस्क मेजर किया जाता है, वो किसके अंदर मेजर किया जाता है? वो बीटा से किया जाता है। और अगर हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, आप अभी वो पढ़ रहे होते, क्या नाम है सब्जेक्ट, सिक्योरिटी एनालिसिस या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इस तरह का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते तो फिर मैं आपको इसको और थोड़ा सा डिटेल में बताता कि जो बीटा का हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। सिर्फ मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको फॉर्मूला, सिर्फ ताकि अगर किसी को आइडिया हो तो वो समझ जाएगा कि बीटा का जो फॉर्मूला होता है दैट इज द कोवेरियंस। कोवेरियंस किस चीज़ का? जो इंडिविजुअल आपकी सिक्योरिटी होती है, यानी कि आपकी कंपनी की सिक्योरिटी, और मार्केट का रिटर्न। तो ये मार्केट का रिटर्न है और ये आपकी अपनी कंपनी का रिटर्न है। तो उन दोनों रिटर्न के दरमियान हम क्या मालूम करते हैं? कोवेरियंस। और उसको डिवाइड कर देते हैं
वेरिएंस ऑफ मार्केट से, जो मार्केट का रिटर्न होगा उसके वेरिएंस से। अब जिन बच्चों ने ये टॉपिक्स पढ़े हुए हैं जो मैं लिखवा रहा हूं, नंबर 1 कोवेरिएंस, लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पे, लेट मी, ये मैं मिटा दूं, एक सेकंड रुकिएगा। यहाँ पे जो बच्चे, हो सकता है आप लोगों ने ये 3 टॉपिक्स पढ़े हुए हों, और अगर नहीं पढ़े या याद नहीं है तो इनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वो 3 टॉपिक्स कौन कौन से हैं? को वेरिएंस, कोरिलेशन, कोरिलेशन और वेरिएंस। अब जब आप वेरिएंस पढ़ते हैं तो फिर आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये तो मैंने सिंपल वे में आपको सिर्फ बता दिया है। ये अभी क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है तो हम इस पे डिटेल में नहीं जाएंगे, और अल्लाह ना करे कि मैं आपको इसकी ज़्यादा डिटेल में चला जाऊं, फिर क्योंकि हम यही पढ़ रहे होंगे उस वक्त। लेकिन ये टॉपिक आपने पढ़ना है, और इसमें सब में आपको फ़र्क पता होना चाहिए कि कोवेरिएंस कब यूज़ कर रहे हैं, और क्या पागलपना, ऐसा क्या ज़रूरत पड़ी जो स्टैटिस्टिशियन थे कि उन्होंने कहा कि कोवेरिएंस इतना अच्छा नहीं है, कई जगह पे वो काम नहीं आता, तो उसको इंटरप्रिटेशन बनाने के लिए, इंटरप्रिटेबल बनाने के लिए या सही करने के लिए हम लोग कोरिलेशन का सहारा लेते हैं। तो होता यही है कि दोनों में डायरेक्शन पता चल रही होती है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, लेकिन एक में हम लोग जो होता है वो इसको यूनिट वाइज कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि रेंज बाउंड कर देते हैं -1 से +1 के दरमियान एक रेंज हो जाती है, और इस रेंज में हम लोग जो है ना फिर वो उसकी प्रिडिक्शन करते हैं। तो वो ज़्यादा समझने वाली चीज़ हो जाती है, लेकिन ये बहुत डिटेल में टॉपिक है, इसको मैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो जो कोवेरिएंस है वो हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं यहाँ बीटा के अंदर। तो कोवेरिएंस लेते हैं किसका? इंडिविजुअल सिक्योरिटी का। जो जैसे फर्ज करें अगर ये आपकी कंपनी एंग्रो की कंपनी है, तो एंग्रो की क्या ले लेंगे आप? रिटर्न ले लेंगे, और मार्केट का रिटर्न ले लेंगे। मार्केट का मतलब है ये स्टॉक मार्केट का रिटर्न्स होते हैं, यानी कि जिस जगह पे वो लिस्टेड कंपनी होगी तो वो पूरी मार्केट का रिटर्न। पूरी मार्केट का रिटर्न कैसे पता चलता है? ये जो हमने बात की है ना, ये जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, सिक्योरिटी मार्केट लाइन, इस पे ये जो पॉइंट हमने दिखाया है ये मार्केट का रिटर्न है, और इस पे लिखा हुआ है मार्केट पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब होता है बहुत सारे कलेक्शन ऑफ शेयर्स, बहुत सारी कलेक्शन ऑफ कंपनीज। इन सारी कंपनीज को अगर हम एवरेज कर ले, कुछ कंपनीज ज़्यादा ग्रो कर रही होंगी, कुछ कंपनीज लॉस में जा रही होंगी, अगर सबका एवरेज करें तो जो इनका बीटा निकलता है वो हमेशा =1 होता है। वो क्या होता है? =1 होता है। तो मार्केट बीटा =1, मार्केट रिटर्न यूजुअली गिवन होता है, वो आपको अगर गिवन नहीं होगा तो वो आप निकाल लेंगे। और ये जो लाइन ब्लू वाली नजर आ रही है इसको हम लोग SML लाइन कहते हैं, सिक्योरिटी मार्केट लाइन। पेपर में मैं आपसे ये ग्राफ बनाने को दूंगा भी, ये जहन में रखिएगा, तो इसको रट लीजिएगा अच्छे तरीके से। इसमें हमने फायदा क्या होता है, जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड रिस्क फ्री रेट। ये क्या होता है? रिस्क फ्री रेट, जो कि ट्रेजरी बिल्स के ऊपर मौजूद है। तो ये तो मैंने एक जनरल आइडिया आपको दे दिया सारा, कैपम मॉडल का और सिक्योरिटी मार्केट लाइन कैसे बनाते हैं। जब थोड़े से आप बड़े होंगे और थोड़े आप जो है ना अच्छा पढ़ने लगेंगे, तो उसमें आपको फिर आपको हो सकता है कोई टीचर CAL पढ़ाए,
CML पढ़ा है, कैपिटल एसेट लाइन, कैपिटल मार्केट लाइन, सिक्योरिटी मार्केट लाइन। इतने टॉपिक्स हैं कि ये ख़त्म ही नहीं होंगे, बहुत टॉपिक्स हैं इसके अंदर। फिर वो फ्रंटियर बनेगा, चीज़ें होंगी। लेकिन अभी मैं ये सब चीज़ें बताता भी रहूँगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा इन सब चीज़ों को, तो इसको मिटा देते हैं। बस उतना याद करें जितना आपको पढ़ाया गया है अभी फ़िलहाल, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा भी पढ़ा दिया ना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, उल्टा आपका नुकसान होना है। मैंने पेपर में दे देना है जो चीज़ मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि बीटा मैंने पढ़ा दिया अब, तो बीटा का फॉर्मूला मैं दे सकता हूँ किस तरह निकालते हैं। और हो सकता है कि मैं आपसे बोल भी दूँ कोवेरिएंस ये है, वेरिएंस ये है, बीटा निकाल के दिखा दें। सही है, डायरेक्ट मैं बीटा नहीं दूँ पेपर के अंदर आपको, ऐसा भी तो हो सकता है। तो कोई भी फिगर कोवेरिएंस की दे दूंगा, कोई भी फिगर वेरिएंस की दे दूंगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो बीटा निकलेगा। जैसे अभी मैंने व्हाट्सएप के ऊपर एक मैंने क्वेश्चन डाला, उसके अंदर मैंने बीटा दिया ही नहीं। सही है, और बाकी सारी चीजें दे दी, वेट दे दिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे दी, वेट ऑफ डेट दे दिया, कॉस्ट ऑफ डेट दे दिया, कॉर्पोरेशन टैक्स दे दिया, सब दे दिया। लेकिन मैंने क्या चीज गायब कर दी इसमें से? बीटा गायब कर दिया। बीटा का फॉर्मूला होता क्या है? बीटा का फॉर्मूला हमारे पास ये है, लेकिन बीटा एक और तरीके से भी निकल सकता है। बीटा कैसे निकल सकता है? जब हम आर ई का फॉर्मूला लगाते हैं, और वो क्या है? रिस्क फ्री रेट। और रिस्क फ्री रेट में आप लोग बीटा को रिस्क प्रीमियम से मल्टीप्लाई करते हैं। रिस्क प्रीमियम ज्यादातर गिवन होता है, रिस्क प्रीमियम को मल्टीप्लाई करते हैं बीटा से, तो यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी। उस वैल्यू को या उस परसेंटेज को रिस्क फ्री रेट की परसेंटेज में ऐड कर देते हैं। 7% पाकिस्तान में इस वक्त रिस्क फ्री रेट चल रहा है। और अगर रिस्क प्रीमियम हम सपोज कर लेते हैं ऐसी कि 15% रिस्क प्रीमियम है, यानी कि 15% जो है रिस्क प्रीमियम है। 15% बहुत ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। रिस्क प्रीमियम 15% का मतलब है कि हमारी स्टॉक मार्केट्स बेहतरीन परफॉर्म कर रही होंगी, साथ साथ आपकी भी जो सिक्योरिटी है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होगी। हमने कहा कि ये इसको तोड़ के लिखते हैं। बीटा हमारे पास 1.2 है, मार्केट का रिटर्न लिखते हैं इसके बाद, और उसमें से रिस्क फ्री रेट को माइनस कर देते हैं और रिस्क फ्री रेट को ऐड कर लेते हैं। रिस्क फ्री रेट है 7%, हमें पता है। 1.2 इज आर बीटा। मार्केट रिटर्न अभी हमें पता नहीं, हमें पूरा इन दोनों का प्लस माइनस करके वैल्यू दी हुई है। तो रिस्क फ्री रेट हमें पता है, रिस्क फ्री रेट क्या है? रिस्क फ्री रेट है 7%। अब हमें RM नहीं पता, सही है, ये मालूम करना है। लेकिन इसका पूरे का अगर प्लस माइनस करके आंसर लिखा हुआ हो और वो 15% हो, तो स्टूडेंट्स मुझे बता सकते हैं ये जो वैल्यू है वो क्या निकलेगी? जी, मार्केट रिटर्न कितना निकलेगा? और मार्क 22। थैंक यू वेरी मच, बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोल दिया आपने। चलें खैर, 22%। वेरी गुड। अच्छा, अब 22% में से 7% निकाला, 15% रिस्क प्रीमियम आया। इस रिस्क प्रीमियम को हमने सिस्टमैटिक रिस्क से जो है वो मल्टीप्लाई किया, विच इज़ बीटा। सही है। और इस टोटल पूरे प्रोडक्ट को 15% को 1.2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा? जी सर। ताज मोहम्मद कह रहे हैं सॉरी सर। सॉरी सर किस बात का है, इतनी जोर से चीखने का? नहीं, हमें असल में देखें, अभी हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं आता तो कोई इशू नहीं है। कभी मेरी भी आवाज़ कुछ आपको अजीब लगती होगी, लेकिन हमने बहुत, क्योंकि मैं तो रोज़ यूज़ कर रहा हूँ ये फ़ोन और इस तरीके से, तो हम लोगों की साउंड चीज़ें काफ़ी बेहतर होती हैं। जी, वहीदुर रहमान ने आंसर दिया 22% सर आंसर आएगा। 22% किसका आंसर आ रहा है?
इस पूरे प्रोडक्ट का आ रहा है, ये जो सेकंड वाला प्रोडक्ट मौजूद है, बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। इसको मैंने कैपिटल सिर्फ इसलिए लिख दिया ताकि आपको थोड़ा सा ज़रा सा बेहतर नज़र आए। इस पूरे फॉर्मूले को चेंज कर देते हैं, इसको लिख देते हैं यहाँ पे आर। तो ये आर एफ रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा, ये फॉर्मूला आपको रट गया होगा। इससे निकलता क्या है, एक्यूटी का, एक्यूटी की कॉस्ट निकलती है। पर ये 22% कैसे है सर, ये समझ नहीं आया। अच्छा, आप अपना जो है वो माइक बंद करें। थैंक यू। अच्छा जी, मुझे लग रहा है किसी स्टूडेंट का माइक ऑन है, चेक करते हैं। मोहम्मद उमैर अजीज साहब, सही हो गया अब। अच्छा जी, तो किसी ने कहा कि सर ये 22% कैसे आया, तो हमने अभी लिखा था 7% यहाँ पे, विच इज़ रिस्क फ्री रेट। इसमें बीटा था 1.2 और जो रिस्क प्रीमियम था वो था 15%। 15% को 1.2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा? क्या 22% आएगा? चैट बॉक्स में देख लेते हैं। 18%, तो वहीदुर रहमान का आंसर गलत हो गया। अच्छा, क्योंकि ना मेरे पास अभी कैलकुलेटर वगैरह नहीं है, तो इसको वापस करते हैं और लिख देते हैं 18%। अच्छा, अब हमारे पास जो है एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 18% में 7% अगर इस ऐड अप करें कितना बनेगा? जी, चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा प्लीज़। 25%, वेरी गुड। अच्छा, आपको बड़ी हैरत होगी कि ये तो मैं इतनी देर में खुद काउंटिंग भी कर सकता था। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ईजिली। तो फिर मैंने आप लोगों से ये काम क्यों करवाया? इसमें होता ये है कि फिर आपका दिमाग चलना शुरू होता है और आप एक्टिव हो जाते हैं कि चलो यार कोई चैट में भी बात लिखनी है, कोई चीज़ करनी है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं और ऐड अप कर दूं, वो ये थी कि जो 15% निकला है ना, ये निकला होता है आर एम माइनस आर एफ से। रिस्क फ्री रेट आपको पता है 7% है, तो इस वक्त मार्केट कितना रिटर्न दे रही होगी आपको? रिस्क फ्री रेट गवर्नमेंट का रेट है, स्टेट बैंक का रेट है, सिक्योरिटीज पे रेट है, टी बिल का रेट है, सही है। आर एम क्या है? आर एम कितना होगा इस जगह पे? 15 में 7% हम ऐड करते हैं अगर, तो हमारे पास वैल्यू आती है 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो वो वही साहब ने जो 22% लिखा था ना, वो उन्होंने मार्केट का रिटर्न बताया था। तो मार्केट का रिटर्न, सही है, वो आर एम कहलाता है, जो कि हमारे पास 22% आया है। एक हमारे पास आर एफ आया है, विच इज़ रिस्क फ्री रेट 7% है, जो कि टी बिल का रेट है। और जो 1.2 है, दैट इज़ योर बीटा, सिस्टमैटिक रिस्क। इन सारी चीज़ों से ग्राफ पेपर में बनाने के लिए दिया जा सकता है, इस तरह का ग्राफ। तो ये आपने बनाना होगा, कैपम का ग्राफ बना दें सिक्योरिटी मार्केट लाइन का। जब हम ये सिक्योरिटी मार्केट लाइन का ग्राफ बना रहे होते हैं तो याद रखिएगा, ये जो हम
कॉस्ट मालूम कर रहे हैं ना, ये इंडिविजुअल सिक्योरिटी, इंडिविजुअल सिक्योरिटी की कॉस्ट है, उसकी इक्विटी की कॉस्ट। यानी कि अगर ये कंपनी है एंग्रो की, तो ये एंग्रो की इक्विटी की कॉस्ट है, यानी कि इक्विटी फाइनेंस करेगा तो ये कॉस्ट उसको पड़ेगी। अब ये हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या मालूम करना था, हमें मालूम करना था वैक। तो अब हमने कौन सा वाला हिस्सा मालूम कर लिया है? वैक वाला हिस्सा हमने मालूम कर लिया। यानी कि हमने पहला वाला सेगमेंट था ये मालूम कर लिया, नंबर वन। वैक के अंदर इक्विटी साइड, उसका रेट मालूम कर लिया, आर ई जिसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सही है, मैंने बताया आपको, इसको आर ई इस तरह भी लिख सकते हैं। प्लस एक चीज मैं और ऐड कर रहा हूँ, विच इज डब्ल्यू पी और आर पी। ये पेपर में मैं पूछूंगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अच्छा, डब्ल्यू पी और आर पी, ये कोई बताएगा मुझे? मैंने अभी बताया था, इसे क्या कहते हैं? ये डब्ल्यू पी आर पी क्या है, किस चीज का वेट है और किस चीज की कॉस्ट है? नंबर टू में। जी, चैट बॉक्स में बताइए ये किस चीज की कॉस्ट है। रिमशा ने भी ज्वाइन कर लिया। जी, जल्दी जल्दी करें ताकि फिर हम आगे बढ़ें। अभी हमने टॉपिक मर्जर्स एंड एक्विजिशन का भी पढ़ना है। तकरीबन 9:30 अभी हो गए। जी, सभी ने कहा है प्रेफरेंस शेयर्स। जी, प्रेफरेंस शेयर्स ही कहते हैं इसको। तो प्रेफरेंस शेयर से भी फाइनेंसिंग हो सकती है, ऑर्डिनरी शेयर से भी हो सकती है। तो अगर पेपर में आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मैंने आपसे कहा प्रेफरेंस शेयर्स भी उसमें ऐड होंगे, तो आप एक सेगमेंट और ऐड कर लेंगे, दैट इज वेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसी तरीके से अब आपने मालूम करना है ये वाला हिस्सा जो हमने पढ़ा था, जिसको हमने आज 3 का नाम दिया, क्योंकि बीच में हमने एक चीज और इनकॉर्पोरेट कर दी, दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा जी, डब्ल्यू, अब हम लिखेंगे डी, और आर डी। आर डी क्या चीज है? कॉस्ट। डब्ल्यू डी उसका वेट, मल्टीप्लाइड बाय 1 - टैक्स। तो अब ये 3 वाला सेगमेंट जो है, जल्दी से कोई मुझे बता दे कि ये आर डी के साथ 1 - टैक्स क्यों लेते हैं? चैट बॉक्स में बताइए, इसको हम क्या कहते हैं 1 - टैक्स को, जो कि कॉर्पोरेट टैक्स होता है, दैट इज कॉल्ड टैक्स शील्ड। थैंक यू सर। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जो है 3 हिस्से होंगे, तीनों से तीनों की फाइनेंसिंग मालूम करनी है, डेट से उठाने में कितनी कॉस्ट पड़ रही है, प्रेफरेंस शेयर से कितनी कॉस्ट पड़ रही है, और ऑर्डिनरी शेयर से कितनी कॉस्ट पड़ रही है। इन तीनों का जो एवरेज होता है, दिस इज नोन एज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मेरे ख्याल से आज आपको काफ़ी हद तक ये क्लियर हो गई होगी बात, क्योंकि ये कल भी मैंने पूरा इतनी डिटेल में पढ़ाया। जी स्टूडेंट्स, अब कंफर्टेबल है इस वाले फॉर्मूले से, इस कॉन्सेप्ट से, कि कैसे कॉस्ट किसे कह रहे हैं हम, फिर वेट किसे कह रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स, इक्विटी फाइनेंसिंग, डेट फाइनेंसिंग। क्या ये फॉर्मूला अब पक्का हो चुका है? रट गया होगा मेरे ख्याल से अब तो। जी, अब्दुल रहमान ने कहा यस सर। सिर्फ एक बच्चे को समझ में आया, बाकी सब कह रहे हैं कि नहीं। ऐसा ही है? नहीं नहीं, सब ने कहना शुरू कर दिया सर, यस सर। वहीदुर रहमान, सारा, सबीका, सिद्धा। जी, और कौन सा बच्चा यस सर कहना चाह रहा है? माजिद। अच्छा, ये चैट जो है आपकी नज़र नहीं आती है, जहन में रखिएगा, जब हम रिकॉर्डिंग्स देते हैं तो किसी को नहीं पता कि ये किससे बात हो रही है, तो टेंशन वाली बात नहीं है आपको। उरूज फहद,
अच्छा जी, चलें जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो आज असल में हमने क्वेश्चन करना था, जिससे थोड़ा सा एक जनरल आइडिया लेंगे हम लोग कि ये किस तरीके से हम लोग जो है ना निकालते हैं सारी चीज़ें, और इसमें हमें क्या बेनिफिट है। चले आगे जाते हैं। अच्छा, ये मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया था जिसमें 100% इक्विटी फाइनेंसिंग थी। उसमें जो सिक्योरिटी का जो हम मतलब कोई भी फाइनेंसिंग कर रहे थे उसकी जो कॉस्ट थी वो 15.92% थी। अच्छा, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी हो गया था। अच्छा, मार्केट कैपिटलाइजेशन में बार बार बता रहा हूँ, ये मिस्टेक यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा, दैट इज बिलियन। और अच्छा, इसी तरह का हम एक फॉर्मूला आज करेंगे। जैसे ये 40 मिलियन रेज कर रहे हैं, 60 मिलियन रेज कर रहे हैं। 40 मिलियन जो रेज हुआ हुआ है उसके साथ ये 1 - 30% लिखा हुआ है। तो क्या मुझे ये बता सकता है कोई कि 40 मिलियन बगैर क्वेश्चन पढ़े ये क्या चीज़ है? 40 मिलियन डेट फाइनेंसिंग है, इक्विटी फाइनेंसिंग है? चैट बॉक्स में कोई एक बच्चा बता दे। डेट फाइनेंसिंग है, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये है कि अगर पूरा क्वेश्चन नहीं भी पढ़ें और आपके पास जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ हो तो आप कभी भी ये गलती नहीं करेंगे कि जहाँ डेट लिखना है वहाँ इक्विटी लिख दी, जहाँ इक्विटी लिखनी है वहाँ डेट लिख दी, उसकी फिगर। ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ये मिस्टेक बहुत कॉमन है, स्टूडेंट्स करते हैं और फिर सर पकड़ के रह जाते हैं, कहते हैं सर हमारा रेट तो इतना कम आया था, हमारा रेट तो इतना ज़्यादा आया था। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसी क्वेश्चन को तकरीबन लेते हुए हम आज थोड़ी सी एक्टिविटीज़ करेंगे अजीबो गरीब किस्म की। और उस एक्टिविटी के अंदर जो है मैं आपको एक दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो कि बहुत प्रैक्टिकल है। यानी कि ये समझ लीजिए, क्योंकि मैं फाइनेंस से मेरा लिंक है, तो हम एक काम करते हैं, वाइट पेज क्रिएट कर लेते हैं। ज़रा सा एक सेकंड रुकिएगा, मैं ज़रा सा यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं 3 4 वाइट पेजेस, ताकि हमें लिखने में आसानी हो। क्योंकि मैं बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ तो वो हमारे पास सेव हो जाएंगे। मेरे ख्याल से इतने काफ़ी होंगे, दो और ले लेते हैं। चलें जी, हो गया हमारा काम। जी स्टूडेंट्स, ज़रा सा मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा कि आपको सिर्फ वाइट स्क्रीन अब नज़र आ रही है। वाइट का मतलब है मकसद सिर्फ बगैर कुछ लिखा हुआ, एम्प्टी। अब हम कोई क्वेश्चन करेंगे इस तरीके से, बहुत सिंपल क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसमें हम कोशिश करेंगे कि ऐसी चीज़ करने की जिससे जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़े उसको थोड़ा सा एडवांस लेके जाए। थैंक यू वही, थैंक यू माजिद, रेमशा, एवरीवन, थैंक यू। ओके, अब ये अपने पास ना कॉपी अगर आपके पास है तो लिखते जाइएगा। ये मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल क्रिएट करूंगा खुद से, कि एक जनरल आइडिया लेने के लिए, सही है? क्योंकि ये बार बार फिर मैं एग्जाम्पल लिख नहीं सकता, इसलिए मैंने ये बना दिया। कोशिश करूंगा कि ये वाला जो पेज है ये मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड भी कर दूँ, जो आपका क्लासरूम है, गूगल क्लासरूम में। तो ये एग्जाम्पल आपके पास सेव रहेगी फिर, इसीलिए हमने ये वाइट पेजेस क्रिएट किए। लेट सपोज हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हमारे पास एक जो है वो कंपनी है, उस कंपनी का नाम है
वारसी एंड कंपनी। ये एक लिमिटेड कंपनी है और अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कॉरपोरेशन आती है, तो ये कॉरपोरेशन भी है। और ये कॉरपोरेशन जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड भी है। अच्छा जी, ये हमने कंपनी का बैकग्राउंड दे दिया कि भाई वारसी भाई की एक कंपनी है। अब हमने कैपएम का फॉर्मूला यूज़ करना है, अब हमने वैक का फॉर्मूला यूज़ करना है, अब हमने इक्विटी और डेट फाइनेंसिंग करनी है, उससे फिर हम वैल्यूएशन करेंगे और आप लोग मुझे आंसर्स बताते चले जाएंगे। चीज़ें मैं आपको बताता चला जाऊंगा, सही है। लेकिन एंड में हम देखेंगे कि कोई एक छोटी सी टेक्निक मैं इसके अंदर ऐड करूंगा और फिर हम बहुत बड़ा काम करेंगे उससे। वो होगा क्या, वो देखते हैं। शुरू में फिर सिंपल फॉर्मूला होगा। अच्छा, सबसे पहली चीज़ आपको मैं डेटा दे रहा हूँ, सही है। क्वेश्चन लिखने के बजाय मैंने डायरेक्टली डेटा दे दिया। डेटा में मैंने आपको बताया कि भाई जो रेट ऑफ डेट है, आरडी, विच इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ डेट, सही है। वो हम ले लेते हैं, हम्म, कम ले लेते हैं, 4% ले लेते हैं, सही है। 4% हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट है। अच्छा, ये कॉस्ट ऑफ डेट बेसिकली कब हुई है, कंपनी ने इशू किए बॉन्ड्स। अब ये कहानी सुनते जाइएगा गौर से, आपको एक्चुअल एंड में पता चलेगा कि इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ है। अच्छा, बॉन्ड्स बेसिकली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, जो जिसको हमने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स दिए उसकी कॉस्ट ये है। इसका मतलब है कि वाई टी एम गिवन है, यील्ड टू मेच्योरिटी, विच इज़ 4%, जिसको हम इस्तेमाल करेंगे कॉस्ट ऑफ डेट के तौर पे। अब आपसे ये कहा गया कि डेटा के अंदर के जो टैक्स चल रहा है वो चल रहा है 25%। और ये अपने पास जो है ना, वो क्या कहते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये लिखते जाएं, क्योंकि ये इसका आंसर आपने देना होगा। फिर मैं यहाँ लिखूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो टैक्स बता दिया मैंने आपको। अब मुझे कोई बच्चा बताए और क्या चीज़ चाहिए होती है वैक मालूम करने के लिए, क्योंकि आप लोग मुझे बताएंगे तो मैं लिखूंगा ना, मुझे तो पता नहीं है अभी। मैं थोड़ा सा बड़ा होऊंगा फिर मुझे पता चलेगा, अच्छा सर ये भी लिखते थे। जी बताइए, और कौन सा डेटा ज़रूरत होती है हमें। रेट ऑफ डेट का मतलब है, आरडी का मतलब है कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट गिवन है, टैक्स भी गिवन है। तो सीधा सभी का इन लोगों ने सबने कहा सर एक्यूटी चाहिए, कॉस्ट ऑफ एक्यूटी चाहिए, वेट ऑफ एक्यूटी चाहिए। वेरी गुड, इसका मतलब है अब आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि जो आर डी है, आर डी मैंने ले लिया 10% ले लेते हैं, क्योंकि हमने ये रेट भी कम लिया है। क्या मैंने ये आर डी सही लिखा है या गलत लिखा है। आर डी 10% लिखा है मैंने। अरे अब आप लोग मुझे ये कहेंगे कि मैं गलत लिख रहा हूँ, इसका मतलब टीचर को आप कह रहे हैं गलत। आप टीचर को कैसे गलत कह सकते हैं, टीचर कैसे गलत लिख सकता है। आर डी सही तो लिखा हुआ है। अच्छा, आर ई होगा, आर डी नहीं आर ही होगा। चलें, आप लोग कह रहे हैं तो सही बात होगी, बिल्कुल मुझसे गलती हो गई। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे आर ई।
आर ई का मतलब क्या होता है? एक्यूटी का कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ एक्यूटी, विच इज 10%। क्या आर डी लिखने के बजाय पेपर में अगर टी बिल का रेट दिया हुआ हो 4%, तो क्या ये 4% वाला रेट आर डी की जगह इस्तेमाल हो सकता है? यस या नो में बताइएगा आंसर। सोच लें दोबारा आप क्या कह रहे हैं। नो। क्या आर डी और आर एफ में फर्क होता है? एक है रिस्क फ्री रेट, एक है कॉस्ट ऑफ डेट, और एक है रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट हम कैपएम में यूज कर रहे थे, सीएपीएम कैपएम वाले फॉर्मूले में, लेकिन वैक वाले फॉर्मूले में ये कॉस्ट ऑफ डेट होता है। सही है, कॉस्ट ऑफ डेट जो कि बॉन्ड्स के ऊपर होता है। मेरे ख्याल से अब क्लियर हुआ होगा पॉइंट। अच्छा, चांसेस हो सकते हैं कि पेपर में आपको घुमाने के लिए, चीजें करने के लिए, आपको जो है वो कॉस्ट ऑफ डेट कहीं पे भी गिवन नहीं हो। यानी कि पूरा क्वेश्चन है ना, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। सही है। तो उस सूरत में फिर हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारा रिस्क फ्री रेट है, अप्रोक्सीमेटली हमारी कॉस्ट ऑफ डेट भी वही है, जो कि होता नहीं है, क्योंकि उसमें तो थोड़ा सा हमेशा रिस्क फ्री रेट से ज्यादा ही होगा आरडी। लेकिन अगर कोई केस ऐसा आ गया कि कुछ भी गिवन नहीं है, यानी कि आरडी कहीं से भी नहीं निकल सकता, यील्ड टू मैच्योरिटी भी नहीं निकल सकता, ना बॉन्ड की प्राइस दी है, ना कुछ डाटा गिवन ही नहीं है किसी किस्म का, तो उस सूरत में फिर आप पे लिखना पड़ता है, क्योंकि सर, क्योंकि पूरे डाटा में आरडी गिवन नहीं है, ऑल्दो कि आरडी हमारा ज्यादा होता है आरएफ से, लेकिन फॉर दी सेफ साइड हमने आरएफ को आरडी के तौर पे ले दिया। ये सबको समझ में आई बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस या नो में बताएं। ये किस सूरत में, जब मतलब डेटा में कोई चीज गिवन नहीं है, आप आरडी कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, तो फिर ये डिसीजन ले लिया जाता है कि रिस्क फ्री रेट को सपोज कर लिया जाता है कि हम उसको कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन वहां एक छोटा सा, एक अंग्रेजी के अंदर आप नोट लिख देंगे। मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो है ना वो थोड़ा सा वीक हो रहा है, अल्लाह खैर करे। चलें खैर, जब तक चल रहा है चलाते हैं, वरना फिर मैं जो हूँ वो, अच्छा अगर अल्लाह ना करे कि मेरा जो है वो ये इंटरनेट बंद हो गया ना, तो आप लोग मुझे 5-10 मिनट दे दीजिएगा, मैं स्टार्ट कर दूंगा या तो जनरेटर, या फिर मैं एक काम करूंगा कि जाके 4G पे कन्वर्ट कर दूंगा सिस्टम को। अच्छा जी, तो वैसे कभी भी याद रखिएगा, 99% चांसेस ये होंगे कि आरडी आपको कैलकुलेट करना होगा, और जो आरडी आप कैलकुलेट करेंगे, याद रखिएगा कि इट हैज़ नथिंग टू डू विद द टी बिल। यस, लेकिन एक चीज होता है, टी बिल से ज्यादा ही रेट होगा किसका? आरडी का। कॉस्ट ऑफ डेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिस्क फ्री रेट। अच्छा जी, अब हमने आर ई लिखा 10% है, अब वेट चाहिए हमें। सही है, तो आपसे कह दिया कि जो वेट है, डब्ल्यू ई, वो है 70%। अच्छा, क्या इस वक्त जितनी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या चीज? आर डी, आर ई, डब्ल्यू ई। आप कहेंगे सर ये तो सब गिवन है। अब अगर लेट सपोज आपसे ये कहा जाता है कि, मैं थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेट बनाता हूँ क्वेश्चन को, 70% नहीं दे रहा मैं आपको, वेट नहीं दे रहा। सही है, और वेट देने के बजाय मैं अब इसको चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन को, कि पेपर में आपसे ये कहा हुआ है कि जो टोटल फाइनेंसिंग आपको चाहिए वो चाहिए। अब ये कौन बच्चा है जिसका जो है वो माइक ऑन हुआ हुआ है?
चलें देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आप गौर से देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फाइनेंसिंग आपको चाहिए, थोड़ा सा मुश्किल कर रहे हैं क्वेश्चन को, सही है। फाइनेंसिंग आपको चाहिए और वो फाइनेंसिंग है ₹100,000, सही है। $1,00,000 जो है, रुपीस के बजाय इसको डॉलर्स कर देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगने लगे क्वेश्चन। और $100,000 चाहिए आपको। अब आपसे ये कहा गया कि जो बॉन्ड इशू करके आप लेकर आएंगे वो 30,000 है, और जो इक्विटी से लाएंगे वो 70,000 है। इक्विटी, डेट। अब परसेंटेजेस नहीं दी हुई होंगी तो कैसे निकालेंगे? 30,000 डिवाइडेड बाय 100,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये निकल आएगी डेट की परसेंटेज। कितना वेट ऑफ डेट है, तो ये निकल आएगा डायरेक्टली 30%। मेरे ख्याल से इतना मुश्किल होगा नहीं, लेकिन पेपर में अक्सर बेशतर परसेंटेजेस नहीं दी होती, सिर्फ लिख लिया जाता है और इतना आसान नहीं होता। वहाँ पे लिख दिया जाता है कि भाई आपने 1.2 मिलियन डॉलर्स उठाए, सही है। तो अगर 1.2 मिलियन डॉलर्स आपने पिक किए, यानी कि आपने मार्केट से लिए इन द फॉर्म ऑफ डेट, और टोटल डेट, टोटल जो है आपको फाइनेंसिंग चाहिए थी 2 मिलियन की, 2 मिलियन डॉलर्स की, तो मुझे बताइए जो डेट मैंने उठाया इसकी परसेंटेज क्या होगी? कौन निकाल के बताएगा मुझे, जल्दी से बताएं। 1.2 मिलियन डॉलर्स आपने पिक किए बॉन्ड्स के थ्रू, यानी कि रेस किए, फाइनेंस किया अपने प्रोजेक्ट को। जी, परसेंटेज कोई निकाल के बताएगा 1.2 की कितनी निकल रही है? जी, चैट बॉक्स में जल्दी से। डेट की 60%। थैंक यू अब्दुल रहमान। अच्छा जी, 60%। चलें जी, वापस आते हैं। जो क्वेश्चन था हमारा वो वहीं के वहीं अभी रखा हुआ है, अभी सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन आप स्टूडेंट्स ने अब तक सॉल्व भी कर लिया होगा उस क्वेश्चन को। जी स्टूडेंट्स, अब आपके पास इंफॉर्मेशन सारी मौजूद है। अब मुझे जल्दी से कैलकुलेट करके बता दें कि वैक कितना निकलेगा। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसमें एक और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि जो रेट ऑफ एक्यूटी गिवन है ये गिवन ना हो। अगर ये गिवन नहीं होगा तो आपके पास रेट ऑफ एक्यूटी का फॉर्मूला होता है, विच इज आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। रिस्क प्रीमियम, सिस्टमैटिक रिस्क बीटा, रिस्क फ्री रेट, तीन हिस्से, 1, 2, 3। इससे भी रेट ऑफ एक्यूटी, कॉस्ट ऑफ एक्यूटी, कॉस्ट ऑफ एक्यूटी निकल आती है, सही है। लेकिन ये जब होगा जब आपके पास गिवन ना हो, तो आप इस फॉर्मूले से इसको लेकर आएंगे। अभी तो आपके पास गिवन है। जल्दी से मुझे वैक निकाल के बताएं भाई, क्या हो गया, इतनी टाइम क्यों लग रहा है? वैक का फॉर्मूला तो पता है ना, अब रटा हुआ है।
वैक का फॉर्मूला हम ले लेते हैं WD RD इंटू 1 - T प्लस WP RP प्लस WE RE। WD हमारे पास वेट गिवन है, वेट तो गिवन ही नहीं है, निकाल लिया 30%। RD गिवन है, आंसर इज यस 4%। टैक्स 1 - 0.25 25%। अच्छा, ये सारी चीज़ें पॉइंट्स में पहले कन्वर्ट हो जाती है फिर निकालते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो इसको 0.3 0.4 इस तरह लिख लीजिएगा, फिर एंड में परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो वो आपके लिए आसानी रहेगी। अदरवाइज आपको हमेशा प्रॉब्लम रहेगी सॉल्विंग में। अच्छा, अब इसमें ये वाला जो सेगमेंट है, वेट ऑफ प्रेफरेंस और रेट ऑफ प्रेफरेंस, इसको आप ज़ीरो रख देंगे क्योंकि गिवन नहीं है। और इक्विटी का जो रेट है वो आ गया हमारे पास, बस वेट 70%, थोड़ा सा लिखना मुश्किल होता है यहाँ पे, और 10% जो है हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। ये ज़ीरो हो गया, टैक्स रेट आ गया, RD आ गया, सब कुछ आ गया। अब देखते हैं चैट बॉक्स में कितने बच्चों ने आंसर लिखा है। 7.9%। और आंसर जो है सभी बच्चों का सही है, जिसमें सारा ने काफ़ी पहले लिख दिया था, उसके बाद सिद्धा और फिर माजिद। चलें जी, इसका मतलब है 7.9%। अच्छा, यहाँ तक तो वही क्वेश्चन है जो अभी तक हम करते आ रहे थे। 7.9%, ये क्या हो गया, वैक निकला है। अब मसला ये है कि ये जो हमने यहाँ पे डॉलर्स में वैल्यूज ली थी ना, 30,000 70,000, अब इसका कोई ना कोई काम होगा आगे। तो अब हमें ये पता है कि जो इक्विटी से हमने फाइनेंस लिया था शेयर्स इशू करके, वो थे $70,000। डेट से हमने फाइनेंस किया था 30,000। जो टोटल फाइनेंस हमने किया है दैट इज 100,000। टोटल फाइनेंसिंग थ्रू डेट एंड इक्विटी, डेट प्लस इक्विटी। अच्छा जी, अब जो थोड़ा सा इसके अंदर ट्रिकी वाली चीज कह लीजिए या अकल वाली चीज कह लीजिए, इसका आंसर आप लोग देंगे कि एक हमारे पास प्रोजेक्ट ए है, आंसर आपने देना है, सही है, वर्सेस प्रोजेक्ट बी। अगेन बार बार कह रहा हूं, आंसर आपने देना है मुझे। हमने ये कहा कि प्रोजेक्ट ए जो उसका वैक है वो ही है, यानी कि ये समझे, मतलब जो अभी हमने वैक पहले निकाला है वही वैक ले रहे, दैट इज 7.9%। तो यहाँ ऊपर टॉप पे लिख देते हैं, वैक लिख देते हैं टॉप पे, WACC, which is 7.9%।
परसेंट। ये मैंने सबसे टॉप पे लिख दिया 7.9% वैक। अच्छा, प्रोजेक्ट ए का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, यानी कि प्रोजेक्ट ए अगर हम स्टार्ट करते हैं, जो कंपनी वारसी एंड कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है? वारसी एंड कंपनी। वारसी एंड कंपनी के पास दो प्रोजेक्ट हैं जिसको वो स्टार्ट कर सकती है। प्रोजेक्ट ए आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रहा है, जो आपने विद दी हेल्प ऑफ कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स और ये वो सब करके निकाला हुआ पहले से, वो है, फर्ज करें 6%। जबकि उसके मुकाबले में जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आप हासिल कर रहे हैं प्रोजेक्ट बी से, वो है 17.5%। बल्कि इसको 17.9 कर देते हैं, ताकि, या बल्कि इसको कम कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। फर्ज करें वो दे रहा है 12.9%। यानी कि हमारे पास दो प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी। तो जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है विच इज 6%, अगर आप उसमें से माइनस कर दें जो आपका वैक था विच इज 7.9%, तो आंसर आपका जो है वो नेगेटिव में आएगा, विच इज -1.9%। अब मुझे ये बताएं कि ये जो -1.9% आया है, इससे कंपनी की वेल्थ जो है वो इंक्रीज होगी, यानी कि कंपनी को इससे फायदा होगा। वेल्थ वेल्थ जो है वो कंपनी की इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? जी प्लीज। जी चैट बॉक्स में लिख के जल्दी से बताइए। डिक्रीज करेगी। वेरी गुड। क्योंकि लाजिमत है, ये नुकसान हो रहा है ना कंपनी का, कि भाई कंपनी जो प्रोजेक्ट करने के लिए जा रही है वो सिर्फ 6% दे रहा है फायदा। और जबकि कंपनी की जो कॉस्ट है, कॉस्ट कैसे कॉस्ट पता चली कंपनी को? जब कंपनी को पता चला कि भाई मैं डेट से पैसा लूंगी, और कंपनी को पता चला अगर मैं जो हूँ इक्विटी से पैसा लूँ तो मुझे कितना कॉस्टली पड़ रहा है, तो 7.9%। तो इसका मतलब है वैक इज ऑल्सो योर बेंच मार्क, मिनिमम बेंच मार्क, कि कम से कम इतनी कॉस्ट से ऊपर अगर रिटर्न मिलेगा तो ही वो काम कर सकते हैं। सही है। एक हमने जो है ये टेक्निक जो है ना वो जबरदस्त किस्म की सीखी, है तो बहुत बच्चों वाली, कि हमने किया क्या है। अच्छा, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जरा सा प्लीज। जी सॉरी। अच्छा, तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड रिटर्न था
एक्सपेक्टेड, ये अपने पास फॉर्मूला लिख लीजिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न, उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या किया है हमने, वैक को। तो आप इसी तरह लिख के बताएंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस वैक, और वो किसके बराबर था इसका आंसर, ये हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है वेल्थ क्रिएटेड और नॉट, वेल्थ इसमें क्रिएट हुई है या नहीं। तो या तो वेल्थ इंक्रीज होगी या वेल्थ डिक्रीज होगी। तो सेकंड वाले केस में आपको क्या लग रहा है, वो तो फिर अब तो कोई मसला नहीं है ना, 12.9% जो है ये आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न है। तो कितने परसेंट से वेल्थ क्रिएट होगी, 5% से सभी का, वेरी गुड, कि वेल्थ क्रिएट होगी। तो ये अब हमें थोड़ा सा एक आइडिया हुआ। अच्छा, इसका मतलब हम और क्या ले सकते हैं, यानी कि ये जो हमने आंसर निकाला, तो जिसमें हमारे पास आंसर आया है, जैसे सबीका ने हमें बताया, क्योंकि हमें तो पता भी नहीं था, माजिद ने भी हमें बताया कि सर 5% से आपकी वेल्थ इंक्रीज होगी। अब ये वेल्थ इंक्रीज होने को हम कहते क्या है, लिखते क्या है, इसका मतलब ये है कि इसको अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें, अंग्रेजी के अंदर, जो कि आप लोगों को आती है बहुत अच्छी, कि फॉर एवरी डॉलर, जो हम हर एक डॉलर, फॉर एवरी डॉलर इन्वेस्टेड, जो हमने इन्वेस्ट किए, क्योंकि प्रोजेक्ट बी में हमने डाले हैं और उसमें जो हमें निकला है, सो फॉर एवरी डॉलर इन्वेस्टेड, डॉलर 0.05 सेंट्स ऑफ वेल्थ इज क्रिएटेड। अब ये हमारा आंसर भी हो गया, सबको समझ में भी आ गया कि हर एक डॉलर इन्वेस्ट करने पे 5% हमारी जो है वेल्थ इंक्रीज कर रही है। यानी कि कंपनी जितना पैसा इस प्रोजेक्ट में लगा रही है, तो वो 5% के हिसाब से। तो अगर आपसे एंड में पूछ लिया जाए कि आप मुझे टोटल वेल्थ इस प्रोजेक्ट से कितनी निकलेगी, तो आप कितनी फाइनेंसिंग कर रहे थे, अगर आपका इस प्रोजेक्ट के अंदर लेट सपोज आपसे कहा जाए कि 200,000 आपको यहाँ इन्वेस्ट करने हैं, सही है, तो क्या मुझे बता सकते हैं कि $2,000 जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें वेल्थ कितनी इंक्रीज होगी। तो इसका आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 200,000 को किससे, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि सर $200,000 मल्टीप्लाइड बाय 5%, और आपके पास आंसर आ जाएगा। और आंसर चैट बॉक्स में मौजूद है, विच इज $10,000। इसका मतलब है कि ये जो प्रोजेक्ट बी है, वो आपकी कंपनी को क्या कर रहा है, $10,000 से कंपनी की वेल्थ को, कंपनी की वेल्थ को इंक्रीज कर रहा है। सो हाउ मच वेल्थ इज गोइंग टू बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ दिस। ये मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा इसमें मज़ा आया होगा, क्योंकि थोड़ी सी, अब देखें, जो छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं, हमें एक्चुअल फिगर्स तक कि हमें असल में फ़ायदा कितना हो रहा है, हमारी वेल्थ, असल में तो हमारा जो मोटो होता है, याद रखिएगा, कॉरपोरेट फाइनेंस हम क्यों पढ़ रहे हैं, कॉरपोरेट फाइनेंस इसलिए पढ़ी जाती है कि यू हैव टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ।
सही है। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि सर ये हम कर तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें रहे थे, और हम पूरी क्लासेस में उल्टी सीधी बातें करते रहे, लेकिन आज हमें थोड़ा थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि अच्छा यार ये छोटी छोटी सी चीज़ें कुछ अच्छी हैं। इन्फिनिक्स स्मार्ट 2 HD कह रहे हैं कि सर अच्छा अच्छा यार मैं नींद में हूँ कसम से। तो भाई आप हमें क्यों बता रहे हैं? इन्होंने कहा कि सर मैं नींद में हूँ इसलिए मुझे बताना चाहिए। ये इन्फिनिक्स स्मार्ट डी का नाम क्या है? अटेंडेंस नहीं लगेगी आपकी जब तक आपका नाम नहीं पता होगा हमें। अच्छा ये शुमाइला है। असल में ये इनको शौक है ना, इनको कि भाई इनको ये भी तो दिखाना है शुमाइला को कि भाई मेरे पास बहुत जो है वो महंगा वाला फ़ोन है, भाई मैं बहुत अमीर हूँ। तो इन्होंने कहा इन्फिनिक्स स्मार्ट 2 HD में लिखूँ तो लोगों को पता चलेगा मैं इतना अच्छा फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। कल को मैं भी डालूंगा ना अपने स्टेटस में आसिफ जेड वारसी के बजाय कि ये लैपटॉप है, कि ये टफ बुक है, कि ये टच स्क्रीन के साथ है, इसमें जो है ये हो जाता है, इसमें वो हो जाता है। वेरी गुड। अच्छा ये हमारा सेशन बहुत बड़ा हो चुका है इस वक्त, और हम लोगों ने काफ़ी देर से मस्ती कर ली। इसमें एक चीज़ और ऐड अप करनी है, सही है? वो बहुत मामूली सी है, हो जाएगी ख़त्म विद इन मेरे ख्याल से 5 मिनट्स में। लेकिन ये कि हम अभी उसको नहीं करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, और ब्रेक लेते हैं। आप बता दीजिए ब्रेक कितनी देर का ले लें, 30 मिनट्स या 1 आवर? जी, 30 मिनट्स का ब्रेक ले लें या 1 आवर का ब्रेक ले लें? जल्दी से बता दीजिए। और अभी हमें वो भी लेनी है। 30 मिनट्स काफ़ी है? चलें, 30 मिनट्स सही है, और 30 मिनट्स में हम थोड़ा बहुत नाश्ता वाश्ता करके दोबारा वापस आते हैं। अच्छा अभी टाइम मुझे ज़रा सा कोई बता दे, एक सेकंड में टाइम चेक कर लूँ। पूरे 10 बज रहे हैं, सही है? पूरे एग्जैक्टली 10:30 बजे हम वापस आते हैं। सही है, 10:30 पे। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। और 5 मिनट अगर कोई लेट आएगा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अटेंडेंस मार्क हो जाएगी इंशाल्लाह। और यहीं से स्टार्ट करेंगे इसको, हम यहीं पे लिखा हुआ छोड़ रहे हैं और यहीं से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।